6 orbits which are inclined to equatorial plane at 55 degrees. 6 orbits, 4 satellites in each orbit, total 24. They are moving at a height of 20,200 kilometers above the surface of the Earth, which is the range, the area is known as MEO, medium Earth orbit, 2,000 to 36,000 kilometers का range. They are moving at the speed of 3. Yes, Ankit. ये जो डिस्टेंस रहेगा ये बिल्कुल फिक्स रहेगा 20,200 या ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा? The figure is taken as 20,200 kilometers. हो सकता है 200.5 or 200.1 हो. We don't know actually, but as the material available all over, it says 20,200 kilometers. Okay. Plus minus 1 meter, 2 meter हो जाता होगा, होता होगा, जरूर से होता होगा, क्योंकि तभी से sorry, so खींच के लाना पड़ता है वापस अपने orbit. So the general accepted figure is 20,200 kilometers. Personally, if you ask me, I haven't measured, I haven't gone and measured. So plus minus हो सकता है कि होता होगा, but we know 20,200 kilometers. Other systems, other GPS or GNSS, they have different number of satellites, different locations or different heights, different number of satellites and height also, method of working also different, but ultimately giving the same result: GPS position fixed or GNSS position fixed on the surface of the Earth or near the surface of the Earth. Okay. So they are moving at the speed of 3.9 kilometer per second. 1 second में 3.9 kilometer. Do you think it is too fast? 14,000 kilometers per second per hour. Is it too much or not? Yes, sir. क्या कहते हैं? Okay. How fast are you moving now? Are you moving? Yes, sir. We are moving. At what speed are you moving? 67,000 kilometers per hour. At a constant speed, sir. At the constant speed, yes. No, not at a constant speed. The speed changes as the Earth is rotating about the Sun. Here it is faster. Here it is slower. जब नजदीक में होता है सन के एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, तो नजदीक में होता है तो फास्टर मूव करता है, यहाँ पे होता है तो धीरे मूव करता है. And the Earth is moving in its orbit at 67,000 kilometers per hour. So that's what is your speed is right now. क्योंकि आप अर्थ के साथ घूम रहे हैं, अर्थ घूम रहा है. So that's where the reference of speed over ground and speed through water. अगर अर्थ पे आप बैठे हैं तो वाटर के ऊपर 0 है, लेकिन अगर सन से देखें तो 67,000 की स्पीड है. Anyway, so it takes 12 hours to complete one orbit. Time period or orbital period is 12 hours, so that it takes 12 hours to complete one orbit. So at the same point on the Earth, it will come back at every 24 hours, right or wrong? सर बताओ सर, इस बात को समझाओ थोड़ा सा प्लीज. समझा नहीं सर मैं भी. अगर एक चक्कर लगाता है 12 घंटे में, तो अर्थ के उसी पॉइंट को फेस करने के लिए एकदम वहीं पे, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर मैं यहीं पे बैठा रहूं, 12 घंटे में सैटेलाइट एक बार घूम के आ रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो 24 घंटे में फिर वापस मैं उसी सैटेलाइट को यहाँ देखूंगा, राइट और रॉन्ग? ये सर, बट वो दूसरी बार आएगा ना इस बार, सेकंड 12 घंटे में आ जाएगा ना दोबारा से पोजीशन, अगर पूरा चक्कर लगा रहा है तो. ओके, तो यहाँ से शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ से सैटेलाइट यहाँ है, एक चक्कर लगा के आया, अर्थ ऐसे हो गई कि नहीं? ये पॉइंट उधर को चला गया या नहीं? जो अर्थ भी तो घूम रहा है अपनी जगह. ओके, यस यस यस. तो जब ये एक चक्कर लगाया, जब ये लगा रहा है तो अर्थ भी घूमेगी कि नहीं? ये वाला पॉइंट जो यहाँ था वो इधर चला गया, अब ये घूम के वापस आएगा 24 घंटे में, तब ये दूसरी बार घूम के आएगा. Yes sir, yes sir. So every 24 hours it comes to the same point on the Earth. All have got their propulsion system so that it can be remotely operated and they can be maneuver around in the space itself. अगर इधर को जा रहा है तो मैं उसको उधर, मैंने MCS can take it to this side or this side depending on what is necessary. The propulsion system can be controlled remotely. They have antennas, they have solar panels. Solar panel, you know, for obtaining power. So it is always oriented towards the sun. As they are moving, they are always pointing towards the sun all the time, so that constant energy is being obtained by the solar panels. The antenna is always oriented towards the earth, क्योंकि सिग्नल तो यहाँ चाहिए, अर्थ पे होगा GPS रिसीवर हमारा, या अर्थ के नजदीक होगा, जो भी होगा अर्थ के टुवर्ड्स ही होगा. So antenna is maximum transmission is happening focused towards the earth. तो दोनों की ओरिएंटेशन साथ साथ में चलती रहती है. Like we said, 6 orbits and 4 satellites in each orbit, 24. This arrangement is such that at any point you will be able to see at least 6 satellites minimum और maximum 12. क्योंकि 12 इधर देख लिया तो 12 अर्थ के दूसरे साइड भी होगा, जो कि नहीं दिखेगा आपको यहाँ से. If you are seeing 6 satellites or maximum 12, others may be on the other side of the earth.
which cannot be seen by you. But एक क्वेश्चन था सर, हाँ बोलिए। जो ये सैटेलाइट होती है सर, ये मूविंग होती है, हम जैसे शिप पे होते हैं, जिस दिन बिल्कुल ब्राइट स्काई होता है सर, हम सारे स्टार्स प्लैनेट सब देख पा रहे होते हैं, तो हमें इनकी मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई देती सर? दूरबीन लेके आओ, दिख जाएगा। नहीं दिखता सर, मैंने ढूंढा था बहुत ज्यादा, और दिखा तो बस ना एक दिखा था, एक बार वो मूव कर रहा था, बाकी 5 नहीं दिख रहे थे। तो आंखें होंगी तो दिख जाएगा भाई। देयर आर सर्टेन मेथड्स, आई मीन सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग विजन एंड नॉट विजन. It has to be large enough to give you enough photons for eyes to capture. अगर आइस के पास वो फोटॉन्स पहुंच रहे हैं तो आप देखोगे, नहीं तो नहीं देखोगे. तो या तो फोटोन बढ़ा लो दूरबीन लगा के, दिख गया तो बहुत अच्छी बात. अब 36,000 किलोमीटर आप मतलब 20,000 किलोमीटर दूर देखना चाहते हो कोई किसी ऑब्जेक्ट को, जो साइज में लेटर से 10 मीटर बाय 10 मीटर का अगर है, या 5 मीटर बाय 5 मीटर का साइज है, 30,000 किलोमीटर से देखने के लिए चाहिए ना. चांद भी तो इतना ही बड़ा दिखता है ना, वो दूर में है. बट बाकी सब जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो उससे भी दूर होते हैं, वो भी दिख जाते हैं फिर हमें। अरे तो उनका साइज उतना है ना, उतना तो वो स्टार्स हैं, वो लाइट एमिट कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं लाइट, तो यहाँ तक पहुंचती है. We have other methods of seeing things which are called radio telescopes. They don't look at the light, but they receive the radio signals coming from galaxy. As of today, scientists have been able to see roughly 13 billion years ago. The situation which was there about 13 billion year ago, 13.6 billion year is the life of the universe. It is so considered that the Big Bang started something like 13.6 billion years ago. What happened back then are the signals being received today. So we have reached into history by about 13 billion years ago. And during those times, what the black holes and stars and all they were forming, those kind of signals we are able to see today. मुझको derail मत करो, मुझको GPS पढ़ाने दो. ओके सर। ठीक है? So let us focus on GPS. Astronomy अभी नहीं पढ़ेंगे. All right. So अगर सैटेलाइट नहीं दिखा GPS का तो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम समझो. So this is what is the space segment. All these satellites are transmitting signal towards the earth. Signal means what? Radio waves, carrier frequency. आप FM का गाना सुनते हैं अपने मोबाइल में रेडियो का चिप है, तो आप सुनते हैं. कोई एक फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पे आप सुनते हैं गाना, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी बताओ. 93.5 सर। 93.5 FM सर, 93.5 बजाते रहो। बजाते रहो. रेडियो सिटी सुनने के लिए आप 98.3 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करते हैं रेडियो को. 98.3 आप क्या डायरेक्टली सुन रहे हो? 93.5 megahertz can you hear or can you see, which is basically radio wave, electromagnetic wave? No. 98.3 is the carrier frequency. इसमें सिग्नल्स आती हैं which is audio. तो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, उसमें इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन इज ऑडियो, गाने हैं, जोक्स हैं, टॉक शोज हैं, न्यूज हैं, वगैरह वगैरह. सो द इंफॉर्मेशन इज ऑडियो सिग्नल, but 98.3 is the carrier frequency. Similarly, in the radio, you can tune to different carrier frequencies: 98.5, 98.3, 93.5, 106.2, 102.6, 100.1. These are different carrier frequencies. सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है. एक विवेक भारती, एक बजाते रहो, रेडियो सिटी, एक रेडियो मिर्ची, एक रेडियो फीवर, एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब ये अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग लोग हैं. इससे पूछोगे तो अजय बोलेगा, उससे पूछोगे तो विजय बोलेगा, उसको देखोगे तो सुरेश बोलेगा, वो रमेश है. सब बात करते हैं, लेकिन सब अलग गाड़ी में आ रहे हैं, अलग कैरियर पे आ रहे हैं. सिमिलरली रेडियो कम्युनिकेशन का दिस इज बेसिक. रेडियो कम्युनिकेशन में दिस इज बेसिक. देयर विल बी अ कैरियर फ्रीक्वेंसी. ऑन दैट कैरियर फ्रीक्वेंसी देयर इज इंफॉर्मेशन. हाउ डू वी पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द कैरियर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द मेथड कॉल्ड? मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन. वी डू मॉड्यूलेशन. यहाँ पे एफएम को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. So there is a particular type of modulation called frequency modulation, which we are using in this broadcast radio communication. Similarly, there is something called amplitude modulation. Another method is something called phase modulation. GPS uses phase modulation, not FM, not AM. That uses PM. So phase modulation से information डाली जाती है carrier frequency पे, और यही carrier frequency is being transmitted by the satellites. Our receivers are designed to tune to, or rather pre-tune basically, क्योंकि एक ही frequency आनी है, change करना नहीं है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना था. वो डिजाइन है, उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव करेगा. व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन ऑन द कैरियर फ्रीक्वेंसी? किस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? स्पीड, टाइम. किसकी स्पीड? स्पीड ऑफ सैटेलाइट. स्पीड ऑफ सैटेलाइट. उससे क्या होगा?
उसे क्या होगा? Remember what we said in the class yesterday? Two basic information is required by the GPS receiver. What are they? GPS receiver को दो चीजें चाहिए पोजीशन फिक्स के लिए. वो दो चीजें क्या हैं? Range of the Range of the satellite and position of the position of the satellite. Information must relate to that. वो कुछ ऐसा सिग्नल जनरेट करता है, भेज रहा है, जिससे मैं उसकी लोकेशन पता करता हूँ और रेंज कैलकुलेट करता हूँ. बस यही तो है. So information is that. The information is something to do with the something with which the receiver can find out the location of the satellite and the range of the satellites. तो कैरियर फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन वो कुछ भेज रहा है जिसे मैं उसका पोजीशन और उसकी रेंज, ये कुछ भेज रहा है जिसे उसका पोजीशन एंड रेंज, वो सैटेलाइट का रेंज एंड पोजीशन, उस सैटेलाइट का रेंज एंड पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड. They are all transmitting different kind of information on the same frequency, but different. Receiver is receiving all this information at one point of time, और चारों से रेंज, चारों का लोकेशन पता चल गया तो अगला स्टेप क्या होता है? जब चारों सैटेलाइट की ये इन्फॉर्मेशन मिल गए, अगला रिसीवर क्या करता है? sir calculation part. कैलकुलेशन पार्ट, ट्राइलैटरेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपनी निकाल लेता है, बस बात खत्म. So this is the space segment. The signals which are transmitted by the satellite is basically uploaded by the MCS. पहले उसको दी जाती है, तब ट्रांसमिट करेगा ना, उसके पास अपना तो कुछ नहीं, वो तो मशीन है. तो क्या ट्रांसमिट करना है वो MCS बताएगा, मास्टर कंट्रोल स्टेशन. वो सही जगह पे है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए. तो नेक्स्ट कम्स द कंट्रोल सेगमेंट और ग्राउंड सेगमेंट, which has got three parts: master control station, monitoring stations, and ground antennas. We'll go to the slides and we will see, talk about this ground segment or control segment. Let us go to the slides. Moment, please. Let me share the screen first. Okay. So space segment में हमने last देखा था. Okay, here we started. I mean, here we left something like this. That is the height of the satellite, 20,200 kilometers, 12 hours to complete one orbit. 24 घंटे में 2 चक्कर लगाता है वो. It passes over the same location on Earth each day. That also we explained. 12 घंटे में अर्थ का वो पॉइंट दूसरी तरफ चला जाता है, because Earth is also rotating. So same position every 24 hours. Basically sidereal day, which is 23 hours, 56 minutes, 4.09 seconds. Here the solar panels is what you are saying. It is so oriented that they are always facing towards the sun to obtain maximum energy, and antenna towards the earth. So transmission is happening downwards while this is pointing to the sun. Orbits and the location of the satellites in the orbit is such that we have at least 6 satellites always within the line of sight that can go maximum to 12. Minimum 6 and maximum 12 will be visible at all time from all points on the earth. कहीं पे भी आप अर्थ पे रहो, किसी भी टाइम रहो, कम से कम 6 तो दिखेंगे, जबकि चाहिए मुझको मिनिमम 4. The situation is made better because nowadays the GPS receivers that you have on ship, जो GPS receiver आपके पास है, that can receive signals not only from GPS but also from GLONASS. जो रशियन सिस्टम है उसके भी सिग्नल को रिसीव कर सकता है ये, और इसके भी सिग्नल को रिसीव कर सकता है. तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और ज्यादा बढ़ गए. जहाज का जो जीपीएस रिसीवर होता है, IMO performance standard requires that they should be able to work with GLONASS as well as GPS satellites. GPS of course is USA and GLONASS is of course Russia. तो दोनों ही सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं हमारे जहाज में जीपीएस रिसीवर. तो 6 तो हम बात कर रहे थे, लेकिन हो सकता है उस समय GLONASS के भी 4 सैटेलाइट दिख रहे हो या 3 दिख रहे हो. So the number of satellites are plenty available now, so we are not having any kind of problem there. Here is the visible number of satellites. The blue dot on the surface of the earth, which is rotating from west to east side. अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट. तो सन फिर ईस्ट से क्यों उगता है और वेस्ट को डाउन होता है? नेगेटिव मोशन हो गया ना सर, हम इधर जा रहे हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं, वही काम हो गया.
ठीक है, हम आगे जा रहे हैं तो 7 वाला पीछे जाता है, एग्जैक्टली। So you can see the number of satellites visible is fluctuating, never goes less than 6, never goes more than 12. The black ones are the visible satellites, red ones are not visible. The GPS receiver is in northern hemisphere somewhere, intermediate latitude. Similarly, we also talked about the antenna. The antenna keeps on rotating in such a way that they are always looking towards the sun. सर ये एंटीनास तो ग्राउंड पे नहीं होते? Sorry, antennas, एक तो ग्राउंड एंटेनास होता है, सैटेलाइट में भी तो एंटेना होगा ना, आपको ट्रांसमिट कैसे करेगा वो? ट्रांसमिशन के लिए ये भी हम ये चाहिए बेसिकली तो सैटेलाइट सर। यस, ये तो हम सैटेलाइट देख रहे हैं ना। एक तो हमारे पास ग्राउंड का एंटेनास अलग होगा, जो यहाँ से भेज रहा है ऊपर की तरफ सैटेलाइट को, लेकिन सैटेलाइट भी तो हमें भेज रहा है ना सिग्नल, उसके लिए अलग एंटेना होना चाहिए। तो सैटेलाइट्स हैव गॉट सोलर पैनल्स एज वेल एज एंटेनास। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। The ground segment or control segment. 3 components. Master control station is the heart and soul of the whole system. सब कुछ यहीं से होता है। मास्टर कंट्रोल स्टेशन बंद कर दिया, हमारा जीपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा। चाहे बाकी सब काम करते रहें, बट सैटेलाइट्स को सही डेटा नहीं मिलेगी, उनको मॉनिटर करना कोई करने वाला नहीं रहेगा, करेक्शंस करने वाले नहीं रहेंगे, तो इट विल बिकम डेड। So that's the heart and soul of the entire GPS service. But of course, anybody doing something must need a helping hand. So for that, there are monitoring stations. अभी हमने देखा कि satellites are transmitting signals. Carrier frequency पे information is transmitted, but that has to be supplied from the master station. So how will it do? It will do it through the ground antennas. So, as already explained, that there is this Earth, there is one monitor station, one master control station. The satellites may be in the sky all across. We need to monitor all the systems, all the satellites at the same time. So there are monitor stations. Monitor stations, वो एक monitor station इतने सारे satellites को जो यहाँ पे सामने आ रहे हैं उन सबको monitor करता रहेगा. Multiple of them are there, as we know, 17, and they will pass it on all the information to the MCS. MCS को फिर जो करना होगा, जो corrections भेजनी होगी या updates भेजना होगा, that will be sent to the satellites using, कैसे भेजेगा ऊपर? ग्राउंड एंटीना। Ground antennas. So read on. Now just read and see if it is understood. बेसिक हमने इसके बारे में बात किया, देखिए पढ़िए समझिए। सर ये जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है ये बस पूरी दुनिया का एक ही है, मतलब पूरी अर्थ का एक ही है? ऑफ कोर्स, पूरे इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं? इंडिया का तो एक ही है सर। हाँ, लेकिन वो इंडिया का एक ही है तो उनको हेल्प करने के लिए मंत्री बहुत सारे हैं कि नहीं? हर डिपार्टमेंट अलग अलग है कि नहीं? Yes. एविएशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, इन सब मंत्रियों को कंट्रोल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए एमसीएस, मॉनिटर स्टेशन हो गए सारे डिपार्टमेंट के मंत्री, और ये मंत्री किनको बेसिकली रिपोर्ट करते हैं? पीएम को करते हैं। एग्जैक्टली, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। सो कोलोराडो स्प्रिंग्स एयरफोर्स बेस स्टेशन, एज वी आल्सो टॉक्ड यस्टरडे दैट इट वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, सो आज के डेट में भी मिलिट्री ही इसको कंट्रोल करती है। बेसिकली मिलिट्री के पास ही जीपीएस का सिस्टम है। ऑफ कोर्स देयर इज एन अल्टरनेट स्टेशन एट कैलिफोर्निया जो कि रेडी टू वर्क, बट इट इज नॉट वर्किंग। एवरीथिंग इज बीइंग डन फ्रॉम कोलोराडो। अगर वहां कुछ हो गया तो एक अल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए। आपके जहाज में भी डुप्लीकेसी ऑफ इक्विपमेंट होती है, सैटसी है तो दो होगा, वीएचएफ है तो दो होगा। सिमिलरली दे आल्सो हैव एन अल्टरनेट स्टेशन और एमसीएस व्हिच इज एट कैलिफोर्निया। अभी हम लोग मैप भी देखेंगे कौन कहां लोकेटेड। रीड ऑन। देखो, हाँ। तो जो ये ग्राउंड स्टेशन है ये कंट्रोल स्टेशन का पार्ट है क्या सर? फिर से बोलो। सर ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल स्टेशन का पार्ट है क्या? ग्राउंड स्टेशन, अभी इसमें आपने कहां ग्राउंड स्टेशन देखा? ग्राउंड एंटीना, सॉरी। इसका पार्ट है मतलब क्या? सारा तो इसका- सिस्टम, मॉनिटर स्टेशन भी पार्ट है इसका, आपका जीपीएस रिसीवर भी इसका पार्ट है, सैटेलाइट भी इसी का पार्ट है। द मतलब होल सर ये जो मॉनिटर हाँ, स्टेशन है इनकी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिर्फ ग्राउंड एंटीना से होती है क्या? अभी ये आपने देखा नहीं। ओके सर। एक सेकंड, लेट मी सी इफ इट इज देयर स्टिल। नहीं है, यहाँ पहले कर दिया हमने। ओके, फिर से एक बार देखते हैं।
इसको देखो, सिग्नल्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं जो ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड में है। हु इज ट्रांसमिटिंग, हु इज रिसीविंग? यूजर सेगमेंट जो आप और हम हैं, वो सिर्फ सिग्नल रिसीव कर रहा है या नहीं? हाँ जी सर। यस सर। तो हमारे जहाज पे सिर्फ रिसीवर है, हम ट्रांसमिट नहीं करते कुछ, हम सिर्फ जो सिग्नल आ रही है सैटेलाइट से उसको यूज करते हैं। यूजर सेगमेंट को क्या मास्टर कंट्रोल स्टेशन सिग्नल भेज रहा है, या मॉनिटर स्टेशन भेज रहे हैं, या ग्राउंड एंटेना आपको सिग्नल भेज रहे हैं क्या इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं। कोई नहीं नो भेज सर। रहा। वो सब रिलेटेड है सैटेलाइट के लिए। माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो। दिक्कत है कि माइक्रोफोन ऑन कर रखा है। ओके ठीक है, फिर से समझिए इस बात को। सैटेलाइट ऊपर में है 24, ये सिग्नल भेज रहे हैं तो हमारे लिए भी भेज रहे हैं, उनको उनका सिग्नल मॉनिटर स्टेशन भी रिसीव कर रहा है और मास्टर कंट्रोल स्टेशन भी रिसीव कर रहे हैं। हम अपना यूज कर रहे हैं उसको पोजीशन फिक्स के लिए। मॉनिटर स्टेशन और मास्टर स्टेशन रिसीव कर रहे हैं सिग्नल उनकी हेल्थ को देखने के लिए कि सैटेलाइट ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन ठीक ठाक है या नहीं ये मॉनिटर स्टेशन नहीं देखता है, कौन देखता है? मास्टर स्टेशन। तो कैसे पता चलेगा कि सैटेलाइट ठीक है नहीं? तो मॉनिटर स्टेशन सारा डेटा भेज देते हैं मास्टर स्टेशन को। नीचे में ये देखिए, दिस सिग्नल, मॉनिटर स्टेशंस आर सेंडिंग एवरीथिंग टू मास्टर स्टेशन और नॉट। अच्छा पहले पढ़ो, तुम पहले पढ़ लो, गो थ्रू द टेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, जस्ट रीड ऑन। पहले हम लोग पूरा खत्म करेंगे इस टॉपिक को, फिर क्वेश्चन उठाएंगे, देखते हैं समझ में आता है या नहीं। लेकिन जो पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ना, जो पढ़ोगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस बार पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जो अभी डाउट लग रहा है होपफुली इट विल क्लियर आउट। नेक्स्ट, नाउ इस पर्टिकुलर स्लाइड में यू आर सीइंग दैट MCS अपलोड्स pseudo random codes and navigation message to the satellites। ये क्या डेटा होगी? MCS क्या भेज रहा होगा सैटेलाइट को? जो करेक्टेड डाटा हो, करेक्टेड पोजीशन होगी। एक तो उनका अपना मूवमेंट वगैरह करेक्शन वो तो ठीक था, लेकिन जो सैटेलाइट भेजेगा उसको मैं यूज करूंगा ना पोजीशन फिक्स के लिए। यस सर। तो ये वही डेटा है, सूडो रैंडम कोड एंड नेविगेशन मैसेज से ही मुझको दो इंफॉर्मेशन मिलती है सैटेलाइट की। एज ए रिसीवर मुझको क्या चाहिए सैटेलाइट पोजीशन फिक्सिंग के लिए? रेंज ऑफ सैटेलाइट और पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। वेरी गुड, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट। जो नेविगेशन मैसेज MCS ने भेजा सैटेलाइट को, वही नेविगेशन मैसेज वो नीचे भेजता है हमारे लिए, और उससे हम सैटेलाइट का लोकेशन पता करते हैं। दूसरा है सूडो रैंडम कोड, जिससे रेंज पता करते हैं। तो जो सैटेलाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे लिए, वो सप्लाई कौन कर रहा है उसको? MCS। MCS। MCS सैटेलाइट को कैसे डेटा अपलोड करेगा? तो उसको एंटेना चाहिए कि नहीं भेजने के लिए ऊपर? यस सर। तो वो एंटेना क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड एंटेना के नाम से जानते हैं। सो जो सैटेलाइट्स MCS के ऊपर है, कोलोराडो के ऊपर में होंगे, उनको चेक करता रहता है और बाकियों को भी चेक करता है थ्रू द मॉनिटर स्टेशन। मॉनिटर स्टेशन वहां देख रहे हैं, मान लो USA में तो वो है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो सैटेलाइट है उनको कौन देखेगा? उसकी डेटा कैसे मिलेगी MCS को? अभी तो वहां मॉनिटर स्टेशन न्यूजीलैंड में लगा रखा है, तो न्यूजीलैंड का जो मॉनिटर स्टेशन है, जो डेटा मिली वो भेज दिया MCS को। MCS will check out if everything is fine. If not, they will transmit back some corrections to the satellite using ground antenna. So it is the MCS only. It is the MCS only which uses the propulsion system of the satellites to put them in their orbit by remote control commands. क्यों? क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत बार डेविएट कर जाते हैं अपने ट्रेजेक्टरी से। अगर ट्रेजेक्टरी से डेविएट हो गए तो हमारा पोजीशन जो है फिर गड़बड़ होने लगेगा। मैं अपना रेंज ले रहा हूँ कुतुब मीनार से, कुतुब मीनार बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो है साकेत में, मेरोले की जगह साकेत में है, तो मेरी रेंज वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? यस सर। So next is monitoring stations.
There are 6 monitoring stations which are in direct control of US Air Force. जो आइलैंड्स, जो जगह, जो टेरिटरी यूएसए के कंट्रोल में है, ऐसे 6 जगहों में उन्होंने अपना खुद का मॉनिटर स्टेशन रखा हुआ है, which is owned and operated by US Defense Services only. But apart from that, there are other satellites, 11 of them, which are located world over, which is not in direct control, but they have an agreement. For example, New Zealand, Bahrain, Ascension Island, खैर वो तो अपने ही पास उनका. So there are so many places where they have friendly countries, वहां भी उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रखे throughout the world. So 6 US Air Force के हैं, बाकी 11 are co-located with other types of stations. कहीं और लगा रखा है. अलास्का, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, अर्जेंटीना, वाशिंगटन. ये वाशिंगटन वाला जो है वो डायरेक्ट एयरफोर्स के कंट्रोल में नहीं है, ऑल्दो इट इज यूएसए, बट एयरफोर्स इसको ऑपरेट नहीं कर रही है. हु इज ऑपरेटिंग इट? एनजीए, नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी. आपको पता होगा कि अमेरिका सारी दुनिया पे नजर रखता है, तो ऐसे ही रखता है, सब जगह सैटेलाइट्स ऑब्जर्वेशन के लगे हुए इनके. सो दिस इफ यू कैन सी आर अदर कंट्रीज एक्सेप्टिंग दिस वन. टोटल मॉनिटरिंग स्टेशन. हाँ जी, इंडिया के आसपास का मॉनिटर स्टेशन कहाँ होगा सर? बोला था ना, सबसे नजदीक जो है हमारे वो बहरीन है. मेरे बहरीन बोला था ना, बहरीन है ना यहाँ. ओके सर. ऑलराइट, तो ये क्या करते हैं? व्हाट आर दिस मॉनिटरिंग स्टेशन डूइंग? रीड. मॉनिटर स्टेशन का फोटो भी देख रहे हो, पहाड़ों पे लगा हुआ है ताकि सारे सैटेलाइट्स को एकदम क्लियरली देख पाए. सैटेलाइट्स की हाइट, स्पीड, पोजीशन, इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू एमसीएस. As we have seen, from any point of Earth, there will be minimum 6 and maximum 12 satellites available. तो यहाँ पे भी मॉनिटरिंग स्टेशन भी किसी न किसी जगह पे अर्थ पे है, तो मैक्सिमम 11, 12, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, बट 11 और 12 सैटेलाइट्स विल बी पासिंग ओवर इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सबके डिटेल्स को नोट कर रहा है, लाइक हाइट, पोजीशन, स्पीड, एटसेट्रा, हेल्थ कंडीशंस, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू एमसीएस. सर 6 भी तो हो सकती है ना सर, जरूरी थोड़ी ना 11 क्यों? Maximum can track up to 11. ओके सर. 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 11. So what will the MCS do with this data which is obtained by self as well as from monitor stations? Read on. ठीक है, ओके सर प्लीज. first paragraph should be okay. Here there are new terms which are coming up. एक तो आया एटॉमिक क्लॉक्स, सॉरी. दूसरा देख रहे हैं समथिंग कॉल्ड एफिमेरिस. We are seeing something called clock parameters. We are seeing something called almanac data. These are nothing but those things, navigation message जो बात किया था और जो सूडो रैंडम कोड्स बात किया था, उन्हीं के साथ अटैच्ड है ये. जो हमने पहले बात किया था कि there are pseudo random codes which are transmitted by the satellite, which is uploaded by the MCS, जिससे रेंज कैलकुलेट होती है, और नेविगेशन मैसेज जिसे हम लोकेशन पता करते हैं सैटेलाइट का. तो ये एल्मेनेक डेटा, एफिमेरिस डेटा इज ऑल अबाउट नेविगेशन मैसेज. ये सारे उसी में होते हैं, नेविगेशन मैसेज का ही पार्ट है. आपने एफिमेरिस या एल्मेनेक का नाम सुना होगा, नॉटिकल एल्मेनेक. क्या होता है उसमें? डाटा. व्हाट काइंड ऑफ डेटा? सर जीएचए, एचए और किसका? हमारा कि मेरा? एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड्स वगैरह बहुत सारी चीज होती है सर. हाँ, तो तुम्हारा अल्टीट्यूड कि मेरा अल्टीट्यूड? सर इनका सेलेस्टियल बॉडी का. सेलेस्टियल बॉडीज का, जो स्टार्स, जो हेवनली बॉडीज है उनका. तो यहाँ पे एल्मेनेक क्या होगा? जीपीएस की जब बात कर रहे हैं, किनका पोजीशन, किसका अल्टीट्यूड, किसका जीएचएल से सब होगा. सर वो तो उसमें तो सन मून वगैरह प्लैनेट्स हैं जो हमारे, उनका सबका दिया होता है.
तो कहने का Okay. मतलब सिर्फ एल्मनेक का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्मनेक इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट्स लोकेशन इन द स्काई। जीपीएस सैटेलाइट्स जो हैं उनका एल्मनेक है ये। ओके सर। सैटेलाइट आसमान में है, स्टार्स हेवनली बॉडीज आसमान में है, नॉटिकल एल्मनेक एल्मनेक होता है हेवनली बॉडीज के लिए। जीपीएस की सर्विस में ये एल्मनेक होगा उन 24 सैटेलाइट्स का, कौन कहाँ है, कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कहाँ होगा। एफिमेरिस ज्यादा फाइनर डिटेल है, हर सैटेलाइट का अपना अलग अलग एल्मनेक 24 के बारे में कि 24 कहाँ कहाँ होंगे। ऑल दीज आर कमिंग एज पार्ट ऑफ द नेविगेशन मैसेज इटसेल्फ। नेविगेशन मैसेज में ही ये सारी चीजें आती हैं। देन देयर इज ग्राउंड एंटेनास। सो हो सकता है मॉनिटर स्टेशन किसी के साथ ये भी लगा हुआ हो, यहाँ से मॉनिटरिंग भी हो रही है और जब यहाँ सिग्नल पहुंची तो वहां से अपलोड भी कर देंगे। So now we have understood MCS is going to send data to the satellite, upload data to the satellite. That will be something like ephemeris, almanac, clock parameters, pseudo ranges, etc. etc. तो ये एंटेना को यूज करके MCS जो है, it sends this data to the antenna and antenna will send information or upload to the satellites. जो भी visible satellites होंगे इसके पास, उन सबको उनका अपना अपना डेटा ऊपर भेज देगा। तो भेज रहा है MCS through ground antennas. What kind of frequency used here? S band frequency. कैरियर फ्रीक्वेंसी। S band का नाम सुना है पहले? एस बैंड। यस सर। कहाँ सुना? एक्स बैंड, एस बैंड, शिप पे, आरपा। आरपा नहीं, रेडार पे। आरपा पे नहीं, आरपा इज अ सॉफ्टवेयर फॉर प्लॉटिंग। आरपा इज नॉट स्क्रीन। यस सर। ठीक है, चलो वो बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू ऊपर भेज दिया जाता है। देयर आर 4 ग्राउंड एंटेनास, 17 मॉनिटरिंग स्टेशन देखा, एक एमसीएस देखा ऑल्टरनेट के साथ। सो देयर आर 4 एंटेनास जो कि मॉनिटर स्टेशन के साथ ही चिपके हुए वहीं पे लगाए हुए, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, बगल में यहीं से ट्रांसमिट भी हो रहा है। सो दे आर लोकेटेड, 4 एंटेनास आर लोकेटेड Kwajalein Atoll Island, Ascension Island, Diego Garcia and Cape Carnival. All these places are in control of US. सर जैसे कि ये काफी सारी प्लेसेस आ रही हैं, इसकी मास्टर स्टेशन की भी, कंट्रोल स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, तो हमें ये सारी प्लेसेस याद करनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे है, या फिर हाँ, हम बस इसकी फंक्शनिंग लिख दें कि ये ऐसे ऑपरेट होता है और बस खाली फंक्शन लिखना है, जगह का नाम नहीं लिखना है आपको, कंट्री का नाम नहीं लिखना है कि कहाँ कहाँ है। Monitor stations are 17 of them located world over. They monitor the satellites and they track the altitude, speed, position, location of the satellites and pass it on to MCS. MCS will compute the data, and if there is any kind of anomaly, correction signals will be sent to the satellites. What kind of corrections? Either trajectory corrections or uploading ephemeris data or almanac data, etc. etc. जो यहाँ पे देख रहे हो आप। Here also one more thing is to see. Almanac data is uploaded every 6 days. क्योंकि ये 24 के बारे में है कि 24 की लोकेशन कहाँ कहाँ है। अगर मैंने एक एल्मनेक किसी एक सैटेलाइट से डाउनलोड कर लिया एज ए रिसीवर, तो मुझको 24 का कलेक्शन पता चल जाता है कि कौन सैटेलाइट कहाँ है, एल्मनेक आगे मेरे पास। व्हेन यू स्विच ऑन द रिसीवर, अगर आपके पास रिसीवर है, आपने स्विच ऑन किया, तो किसी भी एक सैटेलाइट से जब एल्मनेक डाउनलोड करेगा मेरा रिसीवर, तो उस एल्मनेक से पता चल जाएगी कि कौन कौन से सैटेलाइट विजिबल है, कौन कौन कहाँ है। रिसीवर फिर इनमें से बेस्ट सूटेड सैटेलाइट्स को यूज करता है, फिर उनसे डाउनलोड करने लगता है डेटा। अब जब डाउनलोड करेगा तो सब की एग्जैक्ट लोकेशन और उसका रेंज पता करेगा, चारों सैटेलाइट्स का, 5 का, 6 का, जितने का। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? तो सभी सैटेलाइट्स अपना एफिमेरिस डेटा भी भेज रहे हैं, जिसमें वो अपने बारे में कहते हैं कि मेरा ये मूवमेंट। तो हर सैटेलाइट अपने मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एफिमेरिस। एल्मनेक सबका कॉमन, सब एक ही चीज बोलते हैं कि मैं यहाँ, बाकी तेज भाई यहाँ। तो मैं किसी भी एक सैटेलाइट से एल्मनेक डाउनलोड करूंगा तो 24 का पता चल जाएगा मुझको। 24 में से जो मुझको विजिबल है उसमें भी बेस्ट मैं सैटेलाइट्स यूज करूंगा। नॉट ऑल विजिबल सैटेलाइट्स आर गुड फॉर मी। अगर मुझको 10 दिख रहे हैं तो 10 के 10 मेरे लिए ठीक होंगे, नॉट नेसेसरी। उस 10 में से मैं 6 यूज करूंगा बिकॉज दे आर गिविंग मी बेस्ट रिजल्ट्स। अगर 10 यूज करूंगा तो हो सकता है कुछ खराब हो जाए, बल्कि इन प्लेस ऑफ इंप्रूविंग सिचुएशन इट मे गो बैड ऑल्सो। सो इट विल चूज द बेस्ट सैटेलाइट्स और फिर उनका भी एफएमआरएस डाउनलोड करता है हमारा रिसीवर। देन देयर इज लोकेशन एंड रेंज, लोकेशन एंड रेंज, लोकेशन एंड रेंज, लोकेशन एंड रेंज। जब ये मिल गई तो जीपीएस रिसीवर क्या करेगा? कंप्यूटेशन, ट्रायल इटरेशन, और फिर अपनी एक्स वाई की पोजीशन निकाल लेगा। अगर 3D है तो जेड भी निकाल, मैथमेटिक्स। So almanac data is general data.
जो कि 6 दिन में एक बार कर दिया बहुत है, लेकिन एफिमेरिस डेटा इज वेरी प्रिसाइज एंड सो इट इज अपडेटेड एवरी 2 आवर्स। हर 2-2 घंटे में अपडेट करना होता है, नहीं तो एफएमआरएस गड़बड़ हो जाएगी, तो लोकेशन सैटेलाइट का गड़बड़ मिलेगा और उससे पोजीशन गड़बड़ होगी। सो यू कैन सी दैट एमसीएस इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, हर 2-2 घंटे में अपलोड कर रहा है, इस बीच में कंपटीशन वगैरह भी हो रही। तो जीपीएस सिस्टम इज नॉट कि सैटेलाइट भेज दिया ऊपर और काम हो गया, चलो सोने ना। You are going to get continuous position because there is somebody working continuously 24/7. So ground antennas, once again, their job is to monitor the skies. When the signal is coming from the MCS, transmit this data to the satellite, upload kar sakte hain. There are 4 of them. So here is the map of all the components. The star red and blue that you can see is the MCS. The red one is the main control station. California mein alternate station. You have 2 types of monitor station, blue and purple. Blue is the US Air Force monitor station, जो 6 हमने बताए थे, and the purple ones are NGA monitor station in other countries. तो आप देख रहे हैं पर्पल वन इक्वाडोर में है, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, अलास्का. There is of course Washington also, Bahrain. Eleven of them, what you can see right now. Apart from that, there are blue ones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 11. Total 6 and plus 11, 17. Along with this, you can also see that there are ground antennas which are in control of the US Air Force. ये चारों मिलकर के पूरे 2400 सैटेलाइट को एक बार में कवर करते हैं. 4 quadrants में they are located. अर्थ के 4 quadrant में है. So they put together, they are able to capture all the satellites at one point of time. So this is the ground segment or control segment. Then comes the user segment, which is about the device that we are using for getting the position. Of course, it will have an antenna. It is inbuilt here, but जहाज में हमारे पास अलग से antenna होती है जो ऊपर monkey island पे लगा होता है to get better response. There is a box in which there are a couple of buttons to navigate through the software. We have a screen here on which the results are displayed: position, course over ground, speed over ground, date and time, etc. main screen पे. और पीछे जाएंगे तो multiple information is available, of course. Inside there is a clock. इसके भीतर में there is a clock and of course a computer. Clock is used for time. Time is used for finding out the range of the satellite. यहाँ से यहाँ का range जो है that can be calculated using time and speed. Distance is equal to speed into time, right or not? Distance is equal to speed into time, right or wrong? आप 60 किलोमीटर के स्पीड पे चल रहे हैं, आधे घंटे चले, कितना दूर गए? 30 किलोमीटर. So that is 60 kilometer into आधा घंटा, half. That is the distance, 30 kilometers. Yes sir. 2 घंटे चले तो 120 किलोमीटर. 120. So same way, if the wave is running at the speed of light, कितने देर चली? That will be the range, and that's exactly what is done for finding out the range. So clock is necessary. We will see more relevance of this. रिसीवर करता क्या है? अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही ऑन किया आपने, it starts looking at the sky and looks for one satellite. उससे लॉक इन करता है. Then it downloads the almanac from one satellite. उससे पता चल जाता है कि बाकी 24 सैटेलाइट्स कहाँ है, बाकी 23 कहाँ है. उसमें से बेस्ट सैटेलाइट यूज करता है और उनके एफएमआरएस डेटा को डाउनलोड करता है, उनकी लोकेशन पता करता है. इसके साथ वो सबके रेंज भी कैलकुलेट करता है. जब रेंज और लोकेशन मिल गई, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है कंप्यूटर में. फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑनटू द स्क्रीन. सो दैट्स द यूजर सेगमेंट. This thing you must have seen many times on board ship. Main display is the position, but उसके साथ speed and course is also displayed. जो main screen होती है, there you can see that there is date and time,
there is position, there is speed, there is course. These are all ground movements. So this is what is user segment. अब रिसीवर भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिसको हम अगली क्लास में बात करेंगे. टाइम इज अप नाउ. One type of receiver is used by the civilians. Another type is used by the defense services. उनको ज्यादा एक्यूरेट पोजीशन चाहिए तो उनके लिए थोड़ा दूसरे तरीके का रिसीवर होता है, हमारे लिए दूसरे तरीके का रिसीवर, अलग अलग टाइप. So that is dependent on type of frequency that we are receiving. एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है और दूसरा डुअल फ्रीक्वेंसी रिसीवर होते हैं. This is for defense services, this is for civilians. हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी रिसीवर यूज करते हैं. डिफेंस सर्विसेज विल यूज डुअल फ्रीक्वेंसी रिसीवर. डिफेंस मिलिट्री सर्विसेज को ज्यादा एक्यूरेट पोजीशन चाहिए. उनको उस घर के, उस फ्लोर के, उस खिड़की में मिसाइल दागनी. दे नीड बेटर पोजीशन. हमारे लिए 5 मीटर इधर, 5 मीटर 10 मीटर उधर हो गया तो कोई बात नहीं. So we get a general kind of position, but they get a very accurate kind of position. That's why two types. The GPS system is also designed to provide these two kinds of services. एक जो हम यूज करते हैं, एक जो डिफेंस यूज करता है.